Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English syllabus. This video covers the important question answer of the main course book Flamingo, chapter number 2, Lost Spring, written by Anis Jung. So let's move on towards the important question. Question number 1. In India, we believe in prayers. Whenever we are faced with a problem, we pray to God. A son of the priest at Udupi, while going to school, prayed at the temple for a pair of shoes. 30 years later, we find his son well dressed in a school uniform. What has brought about this change? The father's prayer or the father having gone to school, or both? Give a reasonable answer. So some of the lengthy question I have brought in this long type of question, because short question, the MCQs, extract base, you can go through that and easily answer. Now how to answer the long question? This is the question taken from the center part of the text and it is asked कि 30 सालों में क्या हो गया. जो ओडीपी से जो आदमी आया था उसने जो बताया कि भाई 30 साल पहले ऐसे था, और वो छोटा सा जो बच्चा है वो भगवान से प्रे करता है, देवी से प्रे करता है कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, और 30 साल के बाद कितना चेंज देखती है राइटर वहाँ पर कि वहाँ पर जो प्रीस्ट है, नया प्रीस्ट भी आ गया, उसका जो बच्चा है उसके पास शूज़ भी हैं, बहुत एडवांस हो गया है सब. तो यहाँ पर रीज़नेबल आंसर पूछा है कि क्या रीज़न है इस चीज़ का जो ये इतना अंतर आया है. It was indeed the fact that the father had gone to school and received education, because of which his son was wearing a school uniform. ये बात सच है कि जब फादर ही पढ़े लिखे होंगे, only then he would be able to do we can say ना a meaningful job, so that he could provide a good education, okay, good career, good perspective to his children. तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो तभी अपने बच्चों को एबल कर पाएगा सारी चीज़ें देखने के लिए. Education gave him opportunities to improve the quality of not only his life but also of his family and his children. Prayers alone cannot help us. We have to put in our efforts to make the things better. एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, प्रेयर एक हम बोल सकते हैं एक इनविजिबल थिंग है, एक देयर इज़ अ पावर जिसमें हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं. तो एक तरह से वो सिर्फ वी कैन जस्ट होप, है ना, टू जस्ट गेट द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस कि अच्छा होगा, हमारी प्रेयर मान ली जाएगी. बट अगर आप प्रेयर के भरोसे बैठे रहो और कुछ नहीं करो तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया गया है कि अगर एजुकेटेड नहीं होगा कोई तो वो सिर्फ अपने और ना सिर्फ अपनी फैमिली का कुछ कर सकता है, बल्कि वो एक तरह से सोसाइटी पे बोझ हो जाएगा. बट अगर आप एजुकेटेड हो तो आप अपनी फैमिली को भी एक अच्छा स्टेटस दे सकते हो, उनकी सारी डिमांड को पूरा कर सकते हो. Now here the father, while going to school, not only prayed for school shoes but must have also made efforts to get himself educated. The result was that he was able to get for his son whatever he could not have for himself. तो ये बताता है, जो डीपी से जो मैन आया था, मिला था राइटर को, वो बताता है कि एजुकेशन गेन करने के बाद मैं अपना मतलब सोसाइटी में उसने अपना अच्छा स्टेटस बनाया, एंड उसने अपने सारे बच्चों की भी डिमांड पूरी की और उनको काबिल बनाया कि वट एवर दे वॉन्ट दे कुड डू, और ही वॉज नाउ एबल टू कंप्लीट ऑन देयर डिमांड्स. Next question, what does Anis Jung tell us about life at Mukesh home in Firozabad? Mukesh is a boy whose family is engaged in manufacturing of bangles in Firozabad. जो हमारा last lesson था वो हमारे first part से था. Sometime I find rupees in the garbage, and ये जो हमारा question है ये second part से है. I want to drive a car. मुकेश का family. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अनीस जंग ने क्या बताया है मुकेश की फैमिली और फिरोज़ाबाद के बारे में. तो मुकेश इज़ अ बॉय हुज फैमिली इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंगल ऑफ फिरोज़ाबाद, बट he aspires to be a motor mechanic. He aspires, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ही एस्पायर्स, वो बनना चाहता था. क्या बनना चाहता था मुकेश? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. मुकेश वॉलंटियर्स टू टेक द ऑथर्स टू हिज होम एंड ही प्राउडली सेज दैट इज बीइंग रिबल्ड. वो अपने आप वॉलंटियर्स मतलब अपने आप लेकर जाता है अनीस जंग को कि आप मेरे घर आइए, और वो कहता है कि मेरा घर दोबारा बनाए, बहुत प्राउडली बोलता है. द ऑथर अलॉन्ग विद मुकेश वॉक्स डाउन द स्टिंकिंग लेन्स विच आर ब्लॉक्ड विद द गार्बेज. दे वॉक पास्ट होम दैट रिमेन सॉर्ट ऑफ द आउट हाउसेज विद द वॉल्स फॉलिंग इनटू पीसेस. द डोर्स are shaky and there are no windows. Mukesh stopped at one such house and opens the unsteady iron door with his foot and pushed it open. They enter the half-built shack of a rough hut.
तो वो जब लेकर जाता है तो जो लेन गली में से जा रही होती है वहाँ से बहुत बदबू आ रही होती है। जितने भी घर थे बहुत छोटे छोटे गंदे से घर थे, ऐसा लग रहा था कोठरी जैसे घर हैं। उनकी दीवारें, कुछ की दीवारें थी बिल्कुल टूटी हुई थी एंड मीन्स पे कहना बहुत रफ कंडीशन में थी। जो दरवाजे थे वो वूबली थे, ऐसा लगता था अभी गिर जाएंगे। तो ऐसे ही एक घर पे आके मुकेश रुकता है और वो कहता है ये मेरा घर है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब वो अंदर गए तो वो भी कैसा था, हाफ बिल्ट शैक, शैक इज कॉल्ड हट, एक हट के जैसा था। इन वन पार्ट ऑफ इट द रूफ कवर्ड विद द डेड ग्रास, इट कंटेन्स अ फायरवुड स्टोव, a weak and a young woman cooking the evening meal for the whole family. With eyes filled with the smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. When her father-in-law enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Mukesh's father is a proud bangle maker. I'm so sorry, poor bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor and then as a bangle maker, he had failed to renovate the house and send his two sons to school. He could just teach them the art of making bangles. Looking at Mukesh's present condition, his dream seems next to impossible. तो जब वो अंदर जाती हैं, जो आधा घर था वो तो डेड ग्रास से बना हुआ था, मतलब बिल्कुल झोपड़ी की तरह था। अंदर एक स्टोव था जहाँ पे एक वुमेन खाना बना रही थी, वो उसकी भाभी थी। तो यहाँ पे दो फैमिली मेम्बर्स और इंट्रोड्यूस हुए। उसकी जो वाइफ है किसके, मुकेश के एल्डर ब्रदर की, यानी उसकी भाभी। फिर उनके ग्रैंडफादर आते हैं, यानी कि फादर आते हैं, फादर इन लॉ ऑफ द डॉटर, जब मतलब मुकेश के फादर जो पहले एक टेलर थे और अब एक बैंगल मेकर थे, बट वो इतना नहीं कमा पाए कि वो मुकेश और उसके भाई को पढ़ा सके। अभी जो भी उन्होंने किया है, ये घर वो बहुत कम पैसों में जो भी उनके पास था उससे उन्होंने ये अपना घर ठीक कराया है। तो अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट कंडीशन जो मुकेश की है, हिज ड्रीम सीम्स टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल। क्या ड्रीम था, मोटर मैकेनिक। इसको देखकर नहीं लगता था कि मुकेश अपना ड्रीम पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने देखो फिजिकल स्ट्रक्चर अबाउट द हाउस, किस तरह से घर बने हुए थे, और द फैमिली मेम्बर्स, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन हियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी दैट मेड मुकेश ग्रैंडमदर गो ब्लाइंड। I'm so sorry, grandfather go blind. How did Mukesh disapprove this belief by choosing a new vocation and making his own destiny? यानी मुकेश के जो फादर थे वो अंधे हो गए थे बिकॉज ऑफ बैंगल मेकिंग। अब क्या है मुकेश का, क्या इस तरह का वोकेशन इज कॉल्ड जॉब, जो वो नया जॉब करना चाहता है उसको उसकी किस्मत कहाँ लेकर जाती है, ये पूछा है इसमें। Mukesh belonged to a poor family of bangle maker. The bangle makers face many problems in the glass industry. They have to work in the dingy cells without air and light and in high temperature of the furnace. The dust from the polishing the bangles is injurious to eyes. They often lose their eyesight before they become adults. Their eyes are more adjusted to darkness than to the light outside. The unfavorable social and legal system, the deceptive middleman, and their own set destinies keep the workers in the bangle industry of फिरोजाबाद in perpetual poverty. तो यहाँ पे बताया गया है कि बैंगल मेकर की किस हैजार्डियस कंडीशन में काम किया जाता है। उनको बहुत हाई टेम्परेचर भट्टी के पास बैठना होता है जहाँ पे वो शेप देते हैं। उसके बाद जब उसकी पॉलिशिंग की जाती है जिस मशीन से, तो उस कांच का, उस ग्लास का जो डस्ट उड़ता है वो उड़ता है, और कांच तो वैसे ही शार्प होता है, वो उनकी आंखों में जाता है जिससे उनकी आंखें अडल्ट होने से पहले ही बहुत सारे लोग अंधे हो जाते हैं। वो लोग इतने डार्क और डिंगी शेल में सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं कि जब वो बाहर आते हैं दे आर नॉट एबल टू ओपन देयर आइज। उनकी आंखें लाइट के लिए एक्वेंटेड हैं ही नहीं। इसके अलावा, इस कंडीशन के अलावा, जो डिसेप्टिव, धोखेबाज, जो मिडिल मैन हैं, वो सारे उनकी इस पुअर कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो कभी भी उनको आगे नहीं बढ़ने देते, इसीलिए उनकी जो कंडीशन है वो परपेचुअल हो जाती है। परपेचुअल इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, परमानेंट पॉवर्टी रहती है, वो कभी भी रेज नहीं हो पाते हैं सोसाइटी में। The people of Firozabad has accepted this as their karma or destiny. They have lost their initiative to hope and to get out from this situation. But Mukesh was different. His attitude was very different from his family. He wanted to break the family tradition of bangle making. He was daring and determined. He had hopes and dreams. He wanted to be a motor mechanic, and that is how he disapproved the established belief by choosing a new vocation and making his own destiny. वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मान लिया था कि यही हमारा भाग्य, यही हमारी किस्मत है, हम लोग इसके सिवा और कुछ नहीं
नहीं कर सकते हैं। बट मुकेश उन लोगों से थोड़ा अलग था, उसने डिसाइड किया था नहीं मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। वो थोड़ा सा एस्पिरेट पर्सन था और वो उसने पूरा ठान लिया था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, और जितने भी ये एस्टैब्लिश्ड बिलीफ हैं, जो परंपराएं हैं, जो चलता आ रहा है कि भाई ये काम मैं उसको नहीं करूंगा, मैं उसको तोड़ूंगा, इसीलिए उसने अपने लिए एक नया जॉब ढूंढा था। Next question, describe the difficulties that the bangle making of Firozabad face in their lives. Or the life of the bangle makers of Firozabad was full of obstacles which forced them to lead a life of poverty and deprivation. Discuss with the reference to lost spring. Deprivation is called when you are not having something, you cannot take something or receive something, वंचित हो जाना किसी चीज़ से। In the last lesson, Lost Spring, Anees Jung provides us an insight into how the lives of these bangle makers are caught in the vicious circle of the poverty and how they have fallen victims to the society. एक तरफ तो गरीबी और दूसरा सोसाइटी के जो बुरे लोग होते हैं उनके हाथों में ये फंस जाते हैं। Bangle makers are born in poverty, live in poverty and die in poverty. For generations, people have been in this trade, but they have not been able to improve their living condition. They have to work under inhuman condition. They have to work under flickering oil lamps. Their eyes get used to darkness and they lose their sight even before they are adults. They work hard all the day before furnaces with high temperature. In spite of this hard work, they get a meager profit, very बहुत कम, थोड़ा सा meager profit, and their houses have crumbling walls, wobbly doors and no windows. तो यहाँ पे सबसे पहले वो उनकी फिजिकल कंडीशन बता रही हैं कि उनको किस कंडीशन में काम करना पड़ता है, जहाँ जिस लाइट में बैठ के भी वो काम करते हैं वो भी फ्लिकरिंग कर रही है। मतलब अगर लाइट भी स्टेबल नहीं हो तो आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो, बट वो तो इतना महीन काम करते हैं उस फ्लिकरिंग लाइट में, उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी चली जाती है, लगभग सभी की। और इतने हार्ड वर्क के बाद भी उनको मार्जिन, उनको जो पैसा अर्निंग मिलता है वो बहुत कम मिलता है। उनके जो घर हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, क्रम्बलिंग यानी कि बिल्कुल गिरने वाली हैं, जो इस तरह की वॉल होती हैं, वूबली, हिलते डुलते, अनबैलेंस्ड डोर होते हैं। दे आर ओवर क्राउडेड विद ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। दे फाइंड देमसेल्व्स इन द क्लचेस ऑफ द मिडल मैन, मनी लेंडर्स एंड द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट हेल्प दैम। इंस्टेड दे प्रे अपॉन दैम एंड एक्सप्लॉइट दैम। द पुलिस, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन conspires with the middleman and money lenders to keep the bangle makers in poverty. Because of these reasons, they cannot form themselves into a cooperative. Their condition has not changed over the generation because they are illiterate and fatalist. इसके बाद उन्होंने बताया है कि वो अपने आप को पाते हैं, अगर वो कुछ करने की सोचते भी हैं तो जो समाज के लोग हैं, मिडल मैन, ठीक है, जैसे ठग हुए आपके, या इस तरह के ठेकेदार होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं, पुलिस मैन हुए, डिफेंस के लोग हुए, एडवोकेट हुए, ये सारे लोग आपस में मिले होते हैं। इनको, इन लोगों से सिर्फ जो फ़ायदा मिलता है वोटर का, बस वो लेते हैं, बाकी इन लोगों को फॉल्स प्रॉमिस करके इनके साथ खेलते हैं वो। और यही सारी रीज़न है कि वो हमेशा वो पॉवर्टी ही, पुअर रहते हैं, कभी भी उस स्टेज से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वहाँ के जो लोग, यंग लोग हैं, वो कोऑपरेटिव नहीं बना पाते। जब अनीस जंग पूछती हैं कि आप लोगों को कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते हो, आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हो, तो वो बताते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो एनी ऑफ द इलीगल और फॉल्स हम लोगों पे ब्लेम लगा के दे पुट अस इन अ जेल, तो अल्टीमेटली वो भी हम ही लोगों पे आता है। एंड दैट्स वाई दे आर जस्ट अ काइंड ऑफ पपेट इन देयर हैंड्स। क्यों? क्योंकि वो इलिटरेट हैं, वो किस्मत के मारे हैं, वो इसके अलावा और वो कहीं नहीं जा सकते, तो सभी उनका फ़ायदा उठाते हैं। Next question, garbage to them is gold. How do wreck pickers of Simapuri survive? Or for the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is means of survival. What kind of life do the wreck pickers of Simapuri lead? This video contains the question answer of both the parts. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ये चैप्टर नंबर, जो पार्ट नंबर 1 है उससे है,
रैग पिकर्स वाला वैल्यू पॉइंट्स देखो, लाइफ ऑफ मिजरी एंड परपैक्चुअल पॉवर्टी, लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड tarpaulin, lack of opportunities like education, devoid of sewage, drainage and running water, ration cards that get their names on voter list and enables them to buy grain, food is more important than identity, rag picking is prime occupation, their daily bread and 1 rupee note and coin, garbage sustains होप्स एंड हैप्पीनेस, थ्रिल्स। ये सारे हमने की पॉइंट, की वर्ड और कुछ फ्रेजेस लिखे हैं जिसका डिटेल्ड आंसर यहाँ पे फ्रेम है। The rag pickers of the Simapuri immigrated to Delhi from Bangladesh in 1971 and hoping for a bright and promising future. However, their situation in the city is not comfortable as they expected. The rag pickers of Simapuri live in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. The locality lacks proper sewage, drainage system and running water. All these years they have lived without an identity and they still have living like that. In spite of having not proper identity permits, they are surviving. They don't have ration cards which put them in the voters list and enable them to buy the grain. Survival in all the matters to them. This is why they pitch their tents wherever there is food. तो यहाँ पर वो थोड़ा सा बताती हैं कि जो रेग पिकर्स हैं जो सीमापुरी में, वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी। वहाँ के जो घर थे वो सब तबाह हो गए, तो वो मेट्रो सिटी के बाहर आ गए कि भाई यहाँ तो हमको काम मिल ही जाएगा। बट उसके बाद भी वहाँ पे जो उनकी कंडीशन थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अभी हमने पढ़ी थी। उनके जो घर थे वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया में बने हुए थे, किसी भी तरह का कोई सीवेज ड्रेनेज नहीं था। एनिमल एंड पीपल दे बोथ आर लिविंग एट द सेम प्लेस। और आइडेंटिटी के नाम पर उनके पास सिर्फ राशन कार्ड था, वो भी किस लिए कि उनको उसके बदले में खाना मिलता था। वोटर लिस्ट में उनका नाम था जिससे कि फ़ायदा उठाते थे जो वहाँ के मेंबर्स थे जो खड़े होते थे इलेक्शन में। एंड दिस इज़ वाई जहाँ पे भी उनको फूड मिलता था वहाँ पे गार्बेज था, बड़ा शहर था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे थे, वो कूड़ा बीनते थे जो भी उनके मतलब का मिल जाए, इसीलिए वो वहाँ पे रहते थे। तो जहाँ पे भी उनको खाना मिलता था वो वहाँ अपने रहना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनके लिए रहने से ज़्यादा खाना या पेट भरना ज़रूरी है। Garbage and rag picking are means of survival for the people in Simapuri. It earns them their daily bread and puts a roof over their heads. Sometimes while scrounging the garbage, finding money, whether 1 rupee or 10, it is highlighted of this day, especially for the children, as it gives them hope. For children, the garbage is rubbed in wonder, whereas the elders, it is means of survival. Therefore, the writer is right when she says garbage to them is gold. छोटे बच्चों के लिए हो या बड़े बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो गार्बेज था, कूड़ा था, वो उनकी ज़िंदगी थी, वो उनको रोटी देता था। और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी कोई चीज़ मिल जाती, 1 रुपया मिल गया, कभी 10 रुपये मिल गए, कभी कोई कॉइन मिल गया, तो उनके लिए एक वंडर की चीज़ थी, आज हमको क्या मिलेगा, लाइक दैट। और बड़े लोगों के लिए ये एक लिवलीहुड का साधन था, मतलब इससे उनकी कमाई होती थी। तभी अनीस जंग भी कहती हैं कि गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। हमारे लिए वो कूड़ा है लेकिन उनके लिए वो क्या है, गोल्ड। गोल्ड इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंट और एक्सपेंसिव थिंग। What change do you find in Sahib's life when he stops rag picking and starts working at a tea stall? साहिब इज़ द मेन कैरेक्टर, ये एक मेन कैरेक्टर है हमारे फर्स्ट वाले, जैसे उसका मुकेश है। तो उसने रैग पिकिंग छोड़कर जब टी स्टॉल पे काम किया तो उसको क्या चेंजेस आया। वैल्यू पॉइंट्स देखो, चेंजेस इन साहिब्स लाइफ, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, फाउंड द स्टील कैनिस्टर हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, लॉस्ट हिज फ्रीडम। ये हमारे वैल्यू पॉइंट है। अब इस पे बेस्ड हम डिटेल आंसर बनाते हैं। Sahib's full name was Sahib-e-Alam, which means Lord of the Universe. But he is unaware of it and he roams around with his friends doing rag picking, and one morning the writer finds that Sahib has got a job at tea stall. He got 800 rupees in all his meals, but he was not happy. He was carrying a steel canister which was heavier than the plastic bag he used to carry earlier. Sahib felt burdened as he was no longer his own master. The canister belonged to the tea stall owner, and whereas the plastic bags were his own, his face had lost his earlier carefree look, for he had lost his freedom.
तो यहाँ पर बताया है कि वो अपने सारे दोस्तों के साथ सुबह रैग पिकिंग पर जाता था और काफ़ी टाइम उस अनीस जंग ने उससे बात किया, बट एक सुबह अनीस जंग को पता चला कि उसने टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया जहाँ पे उसको 800 रुपये मिलते थे, खाना मिलता था, बट फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो स्टील का कैनिस्टर वो जो देखती हैं कि वो दूध से भरा हुआ लेकर जा रहा था, वो उसका नहीं था। वो किसी के अंडर में काम करता था, अब उसको उसके ऑर्डर मानने पड़ते थे, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। जो टी स्टॉल का मालिक था, पहले जो गार्बेज पिकिंग का वो काम करता था, उसमें सिर्फ एक प्लास्टिक बैग उसको लेकर जाना था, उसमें फ्रीडम था, उसको जहाँ जाना है वो जाता था, जो करना है, जब आना है, जो भी खाना है, कुछ मिल गया रख लिया उसने अपने पास, वो फ्रीडम थी। तो इसलिए अब साहिब खुश नहीं था, बट उसके नाम का जो मतलब था अभी भी उसको पता नहीं था, दैट वॉज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुकेश इज नॉट लाइक द अदर्स, हिज ड्रीम्स loom like a mirage amidst of the dust of his streets that fill his town Firozabad. Justify the statement in the light of contrast in the mindset of the Mukesh and the people of Firozabad. अभी वैल्यू पॉइंट्स देखते हैं इसके। फिरोजाबाद डोमिनेटेड बाय बैंगल मेकर इंडस्ट्री, मोस्ट फैमिलीज engaged in bangle making, work around the furnaces, physically and mentally hazardous, but no one cares to do anything else. And Mukesh was aspires to be a mechanic, unlike his peer, dares to dream, determined to walk to a garage, to a garage and learn to drive. His passion would help him to break away from tradition and achieve his गोल। तो यहाँ पे पहले कंडीशन के बारे में बताया, उसके बाद मुकेश के बारे में बताया कि मुकेश ने कैसे डिटरमाइन कर लिया था कि मैं गैराज जाऊँगा, मैं तो सीखूंगा मोटर कार चलाना और मैं मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। तो वो कितना डिटरमाइन था, अपने पियर्स यानी कि अपने साथ के बच्चों से बिल्कुल अलग था। Mukesh is not like others. He is different from other bangle makers of Firozabad because unlike other, he wants to break the chains of the age of old family lineage and aspires to become a motor mechanic. Family lineage आप बोल सकते हो, जो परंपरा चलती आ रही है कि भाई मेरे बच्चे भी बैंगल मेकर, फिर उनके जो बच्चे होंगे वो भी बैंगल मेकर करेंगे। तो मुकेश इसको तोड़ना चाहता था। He wants to come out of the vicious circle of the poverty. He dares to dream unlike his peers who have accepted bangle making as their profession. Mukesh is a rebel and to fulfill his dream, he is determined to walk to a garage and to learn drive in a city where most families are engaged in making bangles. Rebel is called to oppose करना। तो जब अनीस जंग उससे पूछती हैं कि भाई तुमने मोटर मैकेनिक बनने के लिए क्या किया है, क्या सोचा है, तो यहाँ कि मैं गैराज जाऊँगा, वहाँ जाके काम सीखूँगा। तब अनीस जंग सेड कि गैराज इज़ रियली फार अवे। तो मुकेश ने कहा कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो अवे और स्लाइड फ्रॉम माई डिटर्मिनेशन। मैं गैराज पैदल जाऊँगा रोज़ और काम सीखूँगा, बट मैं जाऊँगा। No one dares to do anything else but work sitting around the furnace, which is physically and mentally hazardous. Mukesh's passions to be a mechanic would help him to break away from the tradition to bangle making and achieve his goal. वहाँ के जितने भी लोग थे वो इतनी hazardous condition में, इतनी hard एटमॉस्फियर में बैंगल मेकिंग का काम करते थे। उनकी पूरी फैमिली, जितने भी फैमिली मेम्बर थे, सब इसमें लगे रहते थे। लेकिन इन सब से अलग हटके मुकेश ने डिसाइड किया है, उसने सोचा है और उसने ठान लिया है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, और यही उसका पैशन है जो उसको और बच्चों से अलग करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? अ चाइल्ड लेबर इज़ अ कोर्स, तो ये बोल सकते हो ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज़ नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसका आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है वो लिख सकते हो, अपनी थॉट बेस पे लिखना है। चाइल्ड लेबर इज़ अ कर्स इन अ सोसाइटी and it must be eliminated. Childhood is a period of mental and spiritual development. This development is only possible when the children lead a carefree life and interact with the other children, play with them and learn with them. But a child laborer is deprived of all these. He has to work for a long hours, which is not good for him. Child laborers are exploited and abused. Their innocent mind do not understand the perils of their working conditions. Eliminating child labor is a tremendous
टास्क। तो यहाँ पे बताया है कि तो बचपन का क्या मतलब होता है, केयर फ्री रहना, किसी बात की चिंता नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट जब बच्चों को फ्री टाइम दिया ही नहीं जाएगा, ऑल द पुअर चिल्ड्रन दे आर एंगेज थ्रू आउट द डे इन देयर वर्किंग, अर्निंग द मनी, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और एक तरह से ये एक्सप्लॉयटेड है एंड अब्यूज़ है। चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों को से काम कराना, इट्स अ काइंड ऑफ अब्यूज़ दैट इज़ इन द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी दिया गया है। और ये उनके इनोसेंट माइंड को जो है वो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पैरल्स ऑफ देयर वर्किंग कंडीशन, मीन्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ देयर वर्किंग कंडीशन उनको नहीं पता है। उनको डांट दिया कि भाई तुमको यही काम करना है, वो नहीं कर सकते, कुछ उनको करना ही पड़ेगा वो काम। मोस्ट चाइल्ड लेबर्स कम फ्रॉम पुअर homes. Some of them have lost their parents and have to support their families. Unless the poverty of the family is removed and children get education, training and financial support, child labor cannot be banned or removed. जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वही बच्चे काम करते हैं जो डिप्राइव्ड होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके अच्छे घर नहीं हैं, जो बहुत पुअर कंडीशन में रह रहे हैं, उनको ज़रूरत है, जिनके माँ बाप नहीं है। अब क्या करोगे? तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जब तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाइल्ड लेबर पे बैन नहीं किया जा सकता। आई अग्री दैट द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन, हियर इट्स कम फॉर राइटर, पुअर चिल्ड्रन आर सेल्डम कैप्ट, सेल्डम इज कॉल्ड ऑफन। जो इन बच्चों के लिए जो भी प्रोमिसेस किए जाते हैं बाय द साइड ऑफ द ऑफिशियल्स, वो सब थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, या वो नहीं, कभी भी पूरे नहीं किए जाते हैं, बहुत कम। In the text, the author promised to Sahib that she would start a school and he would be able to read there, but she did not mean to build a school. So in this very first place, the promise was not meant to be kept. It was an insincere promise. यहाँ पे राइटर का ही एग्जाम्पल दिया कि भाई मजाक मजाक में उसने साहिब से बोल दिया अगर मैं स्कूल खोलूँगी तुम आओगे क्या, बट शी हैज़ जस्ट टोल्ड इन अ वर्ड, बट साहिब छोटे से बच्चे ने इसको सच मान लिया और वो दूसरे दिन आ गया कि आपने स्कूल बना लिया। तो इस तरह के फेक प्रोमिसेस एवरीबडी, द एस्टैब्लिश्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दे डू विद द पुअर पर्सन, और वो सारे झूठे होते हैं। तो यही कहा गया है कि कोई भी अपने वर्ड्स को नहीं रखता है, तो ऐसे हम चाइल्ड लेबर को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। The government has made laws that no child will work in the glass Bengal industry, but still there are 20,000 poor children working there. They are still there in spite of the law. It is because the government is unable to provide basic necessities to them like employment, free education, etc. So the laws are not enforced properly. That is the problem. Moreover, there is no political will. Poor children are helpless, so to say. गवर्नमेंट बता देती है कि भाई बच्चों से काम कराना इलीगल है, तुमको जेल हो जाएगी, बट आप देखो बाहर जाके हर जगह, टी स्टॉल पे, रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, हर जगह बच्चे काम कर रहे हैं। इवन घर के हाउस होल्ड वर्क में भी बच्चों को काम कराया जाता है। अगर पुअर बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल वाले भी उनसे काम कराते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ जो स्कीम्स हैं उनकी सिर्फ पेपर में वर्क कर रही हैं, एक्चुअल में उसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूरी तरह से फेल है। कोई भी पॉलिटिकल विल है ही नहीं, पॉलिटिकल पावर है ही नहीं जो इस पे इरेडिकेशन कर सके, जो इस पे बैन लगा सके चाइल्ड लेबर पे। अगर उनको भाई रहना तो सबको ही है ना, खाना तो सबको, पेट तो भरना ही, अगर उनके पास नहीं है पैसा रुपया और गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करा रही है, वो खुद कमा के तो खाएंगे ही ना। तो यही चीज़ें हैं जो उनको फोर्स करती हैं चाइल्ड लेबर के लिए, इसलिए वो हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए। इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको एक आइडिया दे दिया है, मतलब बहुत सारे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो गए हैं। तो आप टेक्सचुअल पार्ट के अलावा जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो एंड यू विल बी रेडी फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर।